2.4 Steps Procedure of Behavior Modification व्यवहार संशोधन के कदम प्रक्रिया The goal of behavior modification is always to bring about a change in the behavior. व्यवहार संशोधन का उद्देश्य हमेशा व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है. The change may be in terms of यह परिवर्तन निम्नलिखित रूपों में हो सकता है. A newly developed behavior नया विकसित किया गया व्यवहार. Increase or strengthening of a behavior किसी व्यवहार में वृद्धि या उसे मजबूत करना. Maintaining a behavior at a particular rate or pattern of occurrence किसी व्यवहार को किसी निश्चित दर या पैटर्न पर बनाए रखना. Decrease or change in a behavior किसी व्यवहार में कमी या बदलाव लाना. Deciding the goal in only one part of the entire procedure for behavior modification लक्ष्य तय करना केवल व्यवहार संशोधन की पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है. First of all, we need to analyze the problem behavior through a process of behavioral assessment. सबसे पहले हमें व्यवहार मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से समस्या व्यवहार का विश्लेषण करना होता है. Behavioral assessment helps us to understand the problem in its different aspects, in different contexts and across different settings or situation. व्यवहार मूल्यांकन हमें समस्या को उसके विभिन्न पहलुओं, विभिन्न संदर्भों और विभिन्न परिस्थितियों या स्थलों में समझने में मदद करता है. The problem is studied in detail. समस्या का विस्तार से अध्ययन किया जाता है. Frequency, how often the behavior occurs, e.g., how many times the child has used abusive language in a class duration. व्यवहार कितनी बार होता है, जैसे कि बच्चे ने कक्षा के दौरान कितनी बार गाली गलौज की. Duration, how long the problem behavior lasts, e.g., the child goes on talking abusive language or uses it for a while only. अवधि, समस्या व्यवहार कितने समय तक चलता है, जैसे कि बच्चा लगातार गाली देता है या थोड़ी देर के लिए. Intensity, how severe is the behavior, example, the child uses extreme abusive language or mild abusive language. तीव्रता, intensity, व्यवहार कितना गंभीर है, जैसे कि बच्चा बहुत तीव्र गाली देता है या हल्का गाली गलौज करता है. Thus, baseline data forms an important step in the behavior modification plan. इस प्रकार प्रारंभिक डेटा व्यवहार संशोधन योजना में एक महत्वपूर्ण चरण बनता है. Specific information about the behavior is collected. व्यवहार के बारे में विशेष जानकारी एकत्र की जाती है. The ABC model of behavior analysis, also called functional analysis, is used. व्यवहार विश्लेषण का मॉडल ABC, जिसे कार्यात्मक विश्लेषण भी कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है. The ABC model refers to ABC मॉडल का आशय है a antecedent. It describes what happens just before the occurrence of the behavior. एक पूर्ववर्ती antecedent यह बताता है कि व्यवहार होने से ठीक पहले क्या होता है. B. Behavior. It describes the client's behavior. व्यवहार यह ग्राहक व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करता है. Consequences. C. It describes the consequence, i.e. what happens after the behavior. परिणाम इस परिणाम को बताता है, यानी व्यवहार के बाद क्या होता है. Antecedents help in understanding the problem in detail. What precipitates the problem, when it occurs, at what setting it occurs, who are present, what type of event, situation usually lead to the behavior problem in question. पूर्ववर्ती antecedents समस्या को विस्तार से समझने में मदद करते हैं. समस्या को क्या उत्पन्न करता है, यह कब होता है, किस स्थिति में होता है, कौन उपस्थित होता है, किस प्रकार की घटना या स्थिति आमतौर पर व्यवहार या समस्या को जन्म देती है. Behavior refers to the behavior shown on demonstrated. व्यवहार उस व्यवहार को दर्शाता है जो प्रदर्शित किया जाता है.
Consequences determine the client's behavior. परिणाम ग्राहक या व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करते हैं. Consequences refer to what does the behavior lead to, how do parents, teachers, peers respond to the child's behavior. This determines whether the behavior will continue or to be modified और डिक्रीज और इंक्रीज. परिणाम यह दर्शाते हैं कि व्यवहार किस ओर ले जाता है. माता पिता, शिक्षक या साथी बच्चे के व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं. यह निर्धारित करता है कि व्यवहार जारी रहेगा, संशोधित होगा, घटेगा या बढ़ेगा. इन अदर वर्ड्स द एबीसी मॉडल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज. दूसरे शब्दों में एबीसी मॉडल को इस प्रकार समझाया जा सकता है. What comes directly before the behavior, what does the behavior look like, and what comes directly after the behavior respectively. व्यवहार के ठीक पहले क्या होता है, व्यवहार कैसा दिखता है और व्यवहार के ठीक बाद क्या होता है क्रमशः. Once enough observations are made, the data are analyzed and patterns are identified. एक बार पर्याप्त निरीक्षण हो जाने के बाद डेटा का विश्लेषण किया जाता है और पैटर्न की ओर पहचान की जाती है. If there are consistent antecedents and or consequences, an intervention should target those to increase or decrease the target behavior. यदि लगातार पूर्ववर्ती कारक और या परिणाम मौजूद हैं, तो हस्तक्षेप का लक्ष्य उन कारकों को बढ़ाना या घटाना होना चाहिए ताकि लक्षित व्यवहार को बढ़ाया या घटाया जा सके. If the behavior pattern shows a particular antecedents or trigger, then intervention can be to avoid that trigger as far as possible and to learn a new behavior in the presence of trigger. यदि व्यवहार पैटर्न किसी विशेष पूर्ववर्ती या ट्रिगर को दिखाता है, तो हस्तक्षेप इस ट्रिगर से जितना संभव हो सके बचने और ट्रिगर की उपस्थिति में नया व्यवहार सीखने पर केंद्रित हो सकता है. Occurs because it achieves some purpose, then there is a requirement to teach an alternative behavior which will achieve the same purpose without creating any problem. यदि कोई समस्या व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि ये किसी उद्देश्य को पूरा करता है, तो आवश्यक है कि एक वैकल्पिक व्यवहार सिखाया जाए जो वही उद्देश्य बिना किसी समस्या के पूरा करे. The functional assessment helps in understanding the behavior. कार्यात्मक मूल्यांकन फंक्शनल असेसमेंट व्यवहार को समझने में मदद करता है. This facilitates in planning the appropriate intervention technique. यह उपयुक्त हस्तक्षेप तकनीक इंटरवेंशन टेक्निक की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करता है. The following steps can be delineated in the behavioral assessment process. व्यवहार मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम स्पष्ट किए जा सकते हैं. The problem behavior is described in detail with example of its occurrence. समस्या व्यवहार का विस्तार वर्णन किया जाता है और इसके होने के उदाहरण दिए जाते हैं. All the antecedents factor are also elaborated. सभी पूर्ववर्ती कारकों का भी विवरण दिया जाता है. The consequences are noted down. परिणामों को नोट किया जाता है. The goals are specified. लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं. Accordingly, the target response is stated in precise terms. इसके अनुसार लक्षित प्रतिक्रिया टारगेट रिस्पॉन्स को स्पष्ट शब्दों में बताया जाता है. The particular intervention to be used in finalized and implemented. उपयोग की जाने वाली विशेष हस्तक्षेप तकनीक को अंतिम रूप दिया जाता है और लागू किया जाता है. Follow up and evaluation is done. If the intervention did not bring in the desired result, then we again go back to the first step of analyzing the problem in detail in terms of antecedents, factors, and then deciding on the intervention strategies to be adopted. इसके बाद फॉलो अप और मूल्यांकन किया जाता है. यदि हस्तक्षेप से वांछित परिणाम नहीं मिला, तो हम फिर से पहले कदम पर लौटते हैं, यानी समस्या का पूर्ववर्ती कारकों के आधार पर विस्तार से विश्लेषण करना और फिर अपनाई जाने वाली हस्तक्षेप रणनीतियों का निर्णय लेना. For instance, the problem is the aggressive behavior of the child in the playground. उदाहरण के लिए समस्या बच्चे का खेल के मैदान में आक्रामक व्यवहार है. Example of occurrence of the aggressive behavior by the child in the playground of cited. खेल के मैदान में बच्चे के आक्रामक व्यवहार होने के उदाहरण दिए जाते हैं.
When did it occur? How did it start? What was the duration and intensity extra? ये कब हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, इसकी अवधि और तीव्रता आदि का उल्लेख किया जाता है. The consequences, how did the teacher react to the aggressive behavior of the child? How did other classmates present reacted, and any other consequence, maybe punishment by the principal of the school, are also noted. परिणाम, शिक्षक ने बच्चों के आक्रामक व्यवहार पर कैसे प्रतिक्रिया दी, अन्य सहपाठी कैसे प्रतिक्रिया दिए, और कोई अन्य परिणाम जैसे कि स्कूल के प्राचार्य द्वारा सजा भी नोट किया जाता है. एनालिसिस ऑफ द इंसिडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम देन लीड्स टू द सेटिंग ऑफ गोल्स. समस्या के पूर्ववर्ती कारकों और परिणामों का विश्लेषण फिर लक्ष्यों को निर्धारण करने की ओर ले जाता है. द गोल मे बी टू रिड्यूस द एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. लक्ष्य बच्चे के आक्रामक व्यवहार को कम करना हो सकता है. टू अचीव दिस गोल द टारगेट रिस्पॉन्स आई द रिस्पॉन्स विच नीड टू बी चेंज्ड आर स्पेसिफाइड. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य प्रतिक्रिया यानी वह प्रतिक्रिया जिसे बदलने की आवश्यकता है निर्दिष्ट की जाती है. इन दिस केस द टारगेट रिस्पॉन्सेज में बी रिडक्शन इन हिटिंग बिहेवियर, यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, ओवरकमिंग गेटिंग एंग्री वेरी क्विक. इस मामले में लक्षित प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं मारने के व्यवहार में कमी, गाली गलौज का उपयोग कम करना और जल्दी गुस्सा आने से बचना. Thereafter the appropriate intervention technique to be used are decided and implemented. इसके बाद उपयुक्त हस्तक्षेप तकनीक का निर्णय लिया जाता है और उसे लागू किया जाता है. 1.2.5 टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन. व्यवहार संशोधन की तकनीकें. बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजेस डिफरेंट टेक्निक्स टू मॉडिफाई अ पर्सन्स बिहेवियर. व्यवहार संशोधन किसी व्यक्ति के व्यवहार को बदलने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है. इट्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ अ रिवार्ड सिस्टम दैट टारगेट स्पेसिफिक बिहेवियर्स. यह एक पुरस्कार प्रणाली के उपयोग पर आधारित है जो विशेष व्यवहारों को लक्षित करती है. रिवार्ड्स आर यूज्ड टू रीशेप अ पर्सन्स मोटिवेशंस, सो ओल्ड हैबिट्स आर एलिमिनेटेड एंड न्यू मोर बेनिफिशियल हैबिट्स आर फॉर्म. पुरस्कारों का उपयोग व्यक्ति की प्रेरणाओं को बदलने के लिए किया जाता है ताकि पुरानी आदतों को समाप्त किया जा सके और नई अधिक लाभकारी आदतें विकसित की जा सके. 3 टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन आर सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्सिव कंडीशनिंग एंड टोकन इकोनॉमी. व्यवहार संशोधन की 3 तकनीकें हैं: प्रणालीगत संवेदनशीलता, अप्रिय संज्ञानात्मक स्थिति, टोकन अर्थव्यवस्था. Other techniques include extinction and biofeedback. अन्य तकनीकों में विलुप्ति और बायोफीडबैक शामिल है. The 3 techniques are given in detail in the following paragraph. इन 3 तकनीकों का विस्तार निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है. Systematic desensitization, प्रणालीगत संवेदनशीलता. Systematic desensitization is a behavior modification practice used to eliminate fears or undesirable emotions. प्रणालीगत संवेदनशीलता एक व्यवहार संशोधन अभ्यास है जिसका उपयोग भय या अवांछित भावनाओं को समाप्त करने के लिए किया जाता है. It is based on the classical conditioning principles of pairing an anxiety provoking stimulus event with a relaxation response. यह क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांतों पर आधारित है. इसमें चिंता उत्पन्न करने वाली उत्तेजना घटना यानी कि एन एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस इवेंट को विश्राम प्रतिक्रिया यानी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स के साथ जोड़ा जाता है. एक्सपोजर टू द फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुली व्हाइल फोकसिंग ऑन रिलैक्सेशन टेक्निक्स इवेंचुअली लीड्स टू द फियर इंक्लूडिंग स्टिमुली रिजल्टिंग इन द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स रेदर देन फियर. विश्राम तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भय पैदा करने वाली उत्तेजना के संपर्क में आने से अंततः वह उत्तेजना भय की बजाय विश्राम प्रतिक्रिया को उत्पन्न करती है. Assumption here is that relaxation and anxiety cannot go together. यहाँ यह मान लिया जाता है कि विश्राम और चिंता एक साथ नहीं हो सकते. If we bring in relaxation, then anxiety has to go. यदि हम विश्राम लाते हैं तो चिंता को दूर होना ही होगा. Thus, systematic desensitization uses the principle of counter conditioning which counters the anxiety connected with a particular behavior or situation by including a relaxed response to it instead.
इस प्रकार प्रणालीगत संवेदनशीलता प्रति कंडीशनिंग, काउंटर कंडीशनिंग मतलब प्रति कंडीशनिंग के सिद्धांत का उपयोग करती है, जो किसी विशेष सहायक व्यवहार या स्थिति से जुड़ी चिंता को उसकी जगह विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करके कम करती है। This method is often used in the treatment of people who are afraid of flying. यह विधि अक्सर उन लोगों के इलाज में उपयोग की जाती है जिन्हें उड़ान से डर लगता है। Another example of this practice will be removing the fear of public speaking. इस अभ्यास का एक अन्य उदाहरण सार्वजनिक बोलने के डर को दूर करना हो सकता है। This is done by gradually exposing the person to the experience of public speaking. यह व्यक्ति को धीरे धीरे सार्वजनिक बोलने के अनुभव के संपर्क में लाकर किया जाता है। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द फैमिली और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मे बी द फर्स्ट स्टेप। परिवार या कुछ मित्रों के सामने बोलना पहला कदम हो सकता है। द पर्सन देन ग्रेजुअली वर्क्स अप टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स और एसोसिएट्स। फिर व्यक्ति धीरे धीरे अजनबियों या सहयोगियों के बड़े समूह के सामने बोलने की ओर बढ़ता है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन involves the following steps. प्रणालीगत संवेदनशीलता के निम्नलिखित कदम शामिल हैं। Step 1 Constructing an anxiety hierarchy. चिंता की श्रेणी बनाना। The first and most important requirement is to prepare a list of all the situations, events, objects that evoke fear or anxiety in the client. सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यह है कि उस व्यक्ति में डर या चिंता उत्पन्न करने वाली सभी परिस्थितियों, घटनाओं, वस्तुओं की सूची बनाई जाए। This has to be arranged in a hierarchical order from lowest anxiety provoking stimulus to the highest anxiety provoking stimulus. इस सूची को इस तरह क्रमबद्ध किया जाता है कि सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाली उत्तेजना से लेकर सबसे अधिक चिंता उत्पन्न करने वाली उत्तेजना तक क्रम हो। The degree to which each item produces an anxiety is measured in terms of subjective unit of distress SUD. प्रत्येक आइटम कितनी चिंता पैदा करता है, इसे सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस के आधार पर मापा जाता है। There should be usually 5 to 10 SUD difference between each item in the hierarchy. सामान्यतः श्रेणी में प्रत्येक आइटम के बीच 5 से 10 SUD का अंतर होना चाहिए। An example of an anxiety hierarchy in case of a person who has fear of speaking in the public is as follows. सार्वजनिक रूप से बोलने के डर वाले व्यक्ति के लिए चिंता की श्रेणी का उदाहरण निम्नलिखित है। राहुल is a newly recruited manager of the company and he has to attend a conference of the managers from the region and represent his company's policies and progresses. राहुल कंपनी में नया प्रबंधक है और उसे क्षेत्रीय प्रबंधकों के सम्मेलन में भाग लेना है और अपनी कंपनी की नीतियों और प्रगति को प्रस्तुत करना है। बट राहुल इज वेरी अनएक्सियस अबाउट दिस, लेकिन राहुल इस बारे में बहुत चिंतित है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन can be used to help Rahul overcome his anxiety. राहुल की चिंता को कम करने के लिए प्रणालीगत संवेदनशीलता का उपयोग किया जा सकता है। First of all, the counselor can help Rahul construct an anxiety hierarchy. सबसे पहले काउंसलर राहुल की मदद करने उसकी चिंता की श्रेणी को तैयार करेगा। This list may be as follows. यह सूची इस प्रकार हो सकती है। 2 weeks before the conference, reading the brochure for the conference of the managers. सम्मेलन में 2 सप्ताह पहले प्रबंधकों के सम्मेलन का ब्रोशर पढ़ना। 10 days before the conference, discussing with senior managers about things to be presented in the conference. सम्मेलन के 10 दिन पहले वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ सम्मेलन में प्रस्तुत करने वाली चीजों पर चर्चा करना। 8 days before the conference, discussing with the colleagues about the conference. सम्मेलन के 8 दिन पहले सहकर्मियों के साथ सम्मेलन पर चर्चा करना। 6 days before the conference, preparing notes on the things to be presented. सम्मेलन के 6 दिन पहले प्रस्तुत करने वाली चीजों पर नोट्स तैयार करना। 4 days before the conference, rehearsing the
थिंग्स टू बी प्रेजेंटेड, सम्मेलन के 4 दिन पहले प्रस्तुत करने वाली चीजों का अभ्यास करना। 1 डे बिफोर द कॉन्फ्रेंस कीपिंग द मटेरियल्स रेडी दैट नीड टू बी टेकन टू द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन से 1 दिन पहले सम्मेलन में ली जाने वाली सामग्री तैयार रखना। द नाइट बिफोर द कॉन्फ्रेंस डे, सम्मेलन के दिन की पूर्व रात। मॉर्निंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस गेटिंग रेडी फॉर द कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन के दिन सुबह सम्मेलन के लिए तैयार होना। अराइविंग एट द कॉन्फ्रेंस वेन्यू, सम्मेलन स्थल पर पहुंचना। मीटिंग अदर मैनेजर फ्रॉम अदर कंपनीज, अन्य कंपनियों के प्रबंधकों से मिलना। राहुल टर्न कम्स टू प्रेजेंट हिज कंपनीज केस, राहुल की बारी आती है अपनी कंपनी का प्रस्तुतिकरण देने की। स्टेप 2 ट्रेनिंग इन रिलैक्सेशन, विश्राम का प्रशिक्षण। This consists of helping the client achieve a relaxed state of body and mind. इसमें व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विश्राम की स्थिति प्राप्त करने में मदद करना शामिल है। Different kind of relaxation techniques are available. विभिन्न प्रकार की विश्राम तकनीकें उपलब्ध हैं। Jacobson progressive muscular relaxation is commonly used though it requires training and takes longer time. जैकबसन की प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन आमतौर पर उपयोग की जाती है, हालांकि इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और यह अधिक समय लेती है। Among other relaxation methods are शवासन, मेडिटेशन, प्राणायाम एंड सो ऑन। इस तरह से शवासन, ध्यान और प्राणायाम आदि भी विश्राम की अन्य विधियां हैं। The main thing here is that the client should find it comfortable and achieve the desired state, i.e. relaxation. मुख्य बात यह है कि व्यक्ति को यह आरामदायक लगे और यह वांछित स्थिति यानी विश्राम प्राप्त कर सके। Jacobson's relaxation technique is based on the premise that muscular tension and relaxation are incompatible. जैकबसन की विश्राम तकनीक इस सिद्धांत पर आधारित है कि मांसपेशियों का तनाव और विश्राम एक साथ नहीं हो सकते। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मस्कुलर टेंशन इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी एंड देन रिलैक्सिंग इट। इसमें शरीर के प्रत्येक भाग में मांसपेशियों का तनाव पैदा करना और फिर उसे विश्राम करना शामिल है। दिस प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिवली टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग द ग्रुप ऑफ मसल्स one by one creates a very relaxed state, e.g. for relaxing hands, make a fist, create the tension, feel it and then gradually relax them by releasing the hand. मांसपेशियों को क्रमशः तनाव देने और विश्राम कराने का यह अभ्यास बहुत ही आरामदायक स्थिति बनाता है। उदाहरण के लिए हाथों को आराम देने के लिए मुट्ठी बनाएं, तनाव महसूस करें और फिर हाथ खोलकर धीरे धीरे आराम दें। When we are in an anxious state or muscles groups are tensed. जब हम चिंतित होते हैं, हमारी मांसपेशियां तनी हुई होती हैं। Hence we need to know how to release that tension and make it relax. इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि उस तनाव को कैसे छोड़ा जाए और मांसपेशियों को आरामदायक बनाया जाए। Step 3 presenting एंजाइटी प्रोवोकिंग आइटम्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन स्टेट, चिंता उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को विश्राम की स्थिति में प्रस्तुत करना। द लास्ट स्टेप इज प्रेजेंटिंग द हायरार्की ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग आइटम्स वन बाय वन व्हेन द क्लाइंट इज इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। अंतिम कदम यह है कि व्यक्ति को विश्राम की स्थिति में रखते हुए चिंता उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को एक एक करके प्रस्तुत किया जाए। It starts from the lowest anxiety producing stimulus to the highest anxiety producing stimulus. यह सबसे कम चिंता उत्पन्न करने वाली उत्तेजना से शुरू होकर सबसे अधिक चिंता उत्पन्न करने वाली उत्तेजना तक जाता है। The client relaxes and then presented with the first item in the list and then the client relax again. व्यक्ति पहले विश्राम करता है, फिर सूची में पहले आइटम के साथ प्रस्तुत किया जाता है, फिर व्यक्ति फिर से विश्राम करता है। Then the client is presented the next item in the list. फिर व्यक्ति को सूची का अगला आइटम प्रस्तुत किया जाता है। The client visualizes each stimulus situation for at least 20 to 30 seconds. प्रत्येक व्यक्ति उत्तेजना स्थिति की कल्पना कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए करता है। If the client experiences anxiety while visualizing any particular item, he can stop there and relax
and then visualize a new item in between. Example, in the above instance, if Rahul experiences anxiety at the item 6 days before the conference, then a new item can be introduced there 7 days before the conference. यदि व्यक्ति किसी विशेष आइटम की कल्पना करते समय चिंता महसूस करता है तो वह वहीं रुक सकता है और विश्राम कर सकता है और फिर बीच में एक नया आइटम देख सकता है। उदाहरण के लिए ऊपर दिए उदाहरण में यदि राहुल को सम्मेलन से 6 दिन पहले आइटम पर चिंता होती है तो वहां 7 दिन पहले का नया आइटम पेश किया जा सकता है। This pairing of an anxiety provoking situation with relaxation helps one to be able to face the situation and gradually gain confidence in approaching the real life situation later. चिंता उत्पन्न करने वाली स्थिति को विश्राम के साथ जोड़ना व्यक्ति को उस स्थिति का सामना करने में मदद करता है और बाद में वास्तविक जीवन की स्थिति के प्रति धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाता है। नंबर 2, aversive conditioning, अप्रिय अवरोधक संकल्पना। Aversion helps break bad habits through associating aversive stimuli to the undesirable habit. अवरोध यानी बुरी आदतों को तोड़ने में मदद करता है जिसमें अवांछित आदत को अप्रिय उत्तेजनाओं aversive stimuli के साथ जोड़ा जाता है। Eventually, the undesirable habit becomes associated with the negative consequence and the behavior is reduced. अंततः अवांछित आदत नकारात्मक परिणाम के साथ जुड़ जाती है और व्यवहार में कमी आती है। This technique employs the principles of classical conditioning to lessen the appeal of a behavior that is difficult to change because it is either very habitual or temporarily रिवार्डिंग। यह तकनीक क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांतों का उपयोग करती है ताकि किसी व्यवहार का आकर्षण कम किया जा सके जो बदलना कठिन हो क्योंकि यह या तो बहुत आदतन है या अस्थायी रूप से पुरस्कारजनक है। The client is exposed to an unpleasant stimulus while engaged in or thinking about the behavior in question. व्यक्ति को उस व्यवहार में संलग्न होने या उस पर सोचते समय एक अप्रिय उत्तेजना के संपर्क में लाया जाता है। Eventually, the behavior itself becomes associated with unpleasant rather than pleasant feelings. अंततः व्यवहार स्वयं सुखद भावनाओं के बजाय अप्रिय भावनाओं के साथ जुड़ जाता है। One treatment method with alcoholics is the administration of nausea-inducing drug together with an alcoholic beverage to produce an aversion to the taste and smell of alcohol by having it become associated with nausea. शराबियों के इलाज में एक उपचार विधि यह है कि मत्ती पैदा करने वाली दवा को शराब के पेय के साथ दिया जाए ताकि शराब का स्वाद और गंध मतली के साथ जुड़कर व्यक्ति में इसके प्रति अरुचि अवर्जन पैदा करे। टोकन इकोनॉमी, टोकन अर्थव्यवस्था। ह्यूमन बिहेवियर इज routinely motivated and rewarded by positive reinforcement. मानव व्यवहार आमतौर पर सकारात्मक प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित और पुरस्कृत होता है। Token economy is based on systematic positive reinforcement where rules are established that specify particular behaviors that are to be reinforced and a reward system is set up. टोकन अर्थव्यवस्था व्यवस्थित सकारात्मक प्रोत्साहन पर आधारित है जिसमें नियम बनाए जाते हैं जो निर्दिष्ट करते हैं कि किन व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाएगा और एक पुरस्कार प्रणाली स्थापित की जाती है। अ टोकन इकोनॉमी इज अ हाईली इफेक्टिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक स्पेशली विद चिल्ड्रन। टोकन अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक प्रभावी व्यवहार संशोधन तकनीक है विशेष रूप से बच्चों के लिए। In this technique, desired behaviors result in the reward of a token, such as a poker chip or a sticker, and undesirable behaviors result in the removal of a token. इस तकनीक में इच्छित व्यवहार का परिणाम एक टोकन के रूप में पुरस्कार प्राप्त करना होता है, जैसे पोकर चिप या स्टिकर, और अवांछित व्यवहार का परिणाम टोकन को हटाना होता है।
When children obtain a certain number of tokens, the children get a meaningful object or privilege in exchange for the tokens. जब बच्चों को एक निश्चित संख्या में टोकन मिल जाते हैं तो बच्चों को उन टोकनों के बदले एक मूल्यवान वस्तु या विशेषाधिकार मिलता है. Eventually, the rewarding of tokens decreases and desirable behaviors display independently. अंततः टोकन देने का पुरस्कार कम हो जाता है और इच्छित व्यवहार स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं. एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति. Eradicating undesirable behavior by deliberately withholding reinforcement is another popular treatment method called extinction. जानबूझकर प्रोत्साहन यानी reinforcement. Withheld करके अवांछित व्यवहार को समाप्त करना और एक लोकप्रिय उपचार विधि है जिसे विलुप्ति कहा जाता है, एक्सटिंक्शन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु habitually shouts to attract attention may be ignored unless he or she speaks in a conversational tone. उदाहरण के लिए एक बच्चा जो ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार चिल्लाता है उसे अनदेखा किया जा सकता है जब तक वह सामान्य संवादात्मक स्वर में बात ना करे. This is based on the principle that if the behavior is not rewarded or encouraged, it will become extinct. यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि व्यवहार को पुरस्कृत या प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो वह विलुप्त हो जाएगा. फिफ्थ है बायोफीडबैक. Behavior modification principles also can be used to treat emotional problems that are triggered by a physician's symptom. व्यवहार संशोधन के सिद्धांतों का उपयोग उन भावनात्मक समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है जो किसी शारीरिक लक्षण द्वारा उत्पन्न होती हैं. Biofeedback is a method that provides immediate feedback on a person's physiological state, be it heart rate, breathing rate और ब्लड प्रेशर. बायोफीडबैक एक विधि है जो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति जैसे हृदय गति, श्वसन दर या रक्तचाप के बारे में त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करती है. फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय अ mechanical device that lets the person know when a particular symptom is present. फीडबैक एक यांत्रिक उपकरण द्वारा प्रदान किया जाता है जो व्यक्ति को बताता है कि जब कोई विशेष लक्षण मौजूद है. By controlling the symptom, the resulting emotional response can be prevented. लक्षण को नियंत्रित करके इससे उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया को रोका जा सकता है. An example of this would be someone who has problems controlling anger. एक उदाहरण यह हो सकता है कि किसी को गुस्सा नियंत्रित करने में समस्या हो. The increases in breathing rate and heart rate can be monitored and controlled with practice. श्वसन दर और हृदय गति में वृद्धि को अभ्यास के माध्यम से निगरानी और नियंत्रित किया जा सकता है. Once controlled, a person is better able to control an angry outburst. एक बार नियंत्रित हो जाने पर व्यक्ति अपने गुस्से के आवेग को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकता है. 1.2.6 Potentials and limitations of behavior modification. व्यवहार संशोधन की संभावनाएं और सीमाएं. The whole point of behavior modification techniques is to change undesirable or harmful behaviors and replace them with healthier, more desirable ones. व्यवहार संशोधन तकनीकों का मुख्य उद्देश्य अवांछित या हानिकारक व्यवहारों को बदलना और उन्हें स्वस्थ, अधिक वांछनीय व्यवहारों में बदलना है. There are many advantages of the behavioral approach to counseling. सलाहकार प्रक्रिया में व्यवहारात्मक दृष्टिकोण के कई लाभ हैं. When applied properly, the technique can be effective in working with children, adults and animals also. यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह तकनीक बच्चों, वयस्कों और जानवरों के साथ काम करने में भी प्रभावी हो सकती है. In fact, it can be used for changing the behavior of any living beings. वास्तव में इसका उपयोग किसी भी जीवित प्राणी के
व्यवहार को बदलने के लिए किया जा सकता है। एनिमल ट्रेनर्स फ्रीक्वेंटली टर्न टू बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स टू हेल्प पेट ओनर्स टर्न बैड हैबिट्स इनटू गुड हैबिट्स। पशु प्रशिक्षक अक्सर व्यवहार संशोधन तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि पालतू जानवर के मालिक अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकें। They also make use of behavior techniques to train animals. The different types of new behavior as we see in animal and bird shows. वे विभिन्न प्रकार के नए व्यवहार सिखाने के लिए भी व्यवहार तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसा कि हम पशु और पक्षी प्रदर्शन में देखते हैं। Behavioral modification aims at enabling the clients to take charge of their behavior. व्यवहार संशोधन का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं ले सके। Substance abuse counselors, for example, often encourage clients to take ownership of their behaviors and change them using behavior modification techniques. उदाहरण के लिए नशीली आदतों के सलाहकार अक्सर अपने क्लाइंट्स को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लें और व्यवहार संशोधन तकनीकों का उपयोग करके उन्हें बदलें। The subject client in the behavioral interventions take an active role and ownership of the change process. व्यवहारिक हस्तक्षेप में व्यक्ति क्लाइंट सक्रिय भूमिका निभाता है और परिवर्तन प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेता है। The basic concepts and methods of behavior modification are pretty easy to understand and implement. व्यवहार संशोधन की मूल अवधारणाएं और विधियां समझने और लागू करने में काफी आसान है। Behavioral approach focuses on the current behavioral problems in the context of the individual's current environment situation. व्यवहारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति की वर्तमान पर्यावरण स्थिति के संदर्भ में वर्तमान व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित होता है। It does not analyze the past events happening or situation. यह पिछले घटनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों का विश्लेषण नहीं करता। Behavioral intervention spells out achievable behavioral goals in terms that enable you to measure your success. व्यवहारिक हस्तक्षेप ऐसे व्यवहारिक लक्ष्य स्पष्ट करता है जिन्हें आप माप सकते हैं और अपनी सफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। The intervention techniques follow a systematic step-by-step procedure. हस्तक्षेप तकनीकें व्यवस्थित चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करती हैं। A series of steps are delineated that to bring about change and lead to desired behavior. एक श्रृंखला में कदम बताए जाते हैं जो परिवर्तन लाने और वांछित व्यवहार प्राप्त करने में मदद करते हैं। There are a variety of therapeutic techniques and procedures associated with behavior modification, so the technique is best used by specially trained skilled practitioners. व्यवहार संशोधन से संबंधित कई चिकित्सीय तकनीकें और प्रक्रियाएं होती हैं, इसलिए यह तकनीक विशेष रूप से प्रशिक्षित और कुशल पेशेवरों द्वारा ही सबसे अधिक उपयोग की जाती है।